Hello students of class 12th. In this video we will start the unit 3, that is the magnetic effect of electric current and magnetism. First of all, we must know what is magnetic field. Magnetic field is the space or region around the current carrying conductor in which its influence can be felt by the magnetic needle. The space around a current carrying conductor in which its influence can be felt by a magnetic needle. This is the proper definition of magnetic field, and this magnetic field is indicated by a symbol capital B. If I am talking about the magnetic field, it means it is obvious that I am talking about the intensity of the magnetic field. So this capital B represents the intensity of the magnetic field. As in unit 1 you have studied about the intensity of electric field, and that intensity of electric field was represented by capital E. In the same way, this intensity of magnetic field is represented by capital B, and it is very similar to the electric field because both are vector quantities. So magnetic field is a vector quantity, means it has magnitude as well as direction. Now we will discuss about the rule to find out the magnetic field. So the most important rule is right hand thumb rule. You have studied these rules in class 10th. Okay, now what is this rule? Suppose there is a straight wire in which the current is flowing from down to up. If we are holding that wire vertically, then the current is flowing from down to up. It means this arrow will represent the direction of the current, and according to right hand thumb rule, this is the right hand thumb rule, this is the right hand, and this thumb indicates the direction of current, and the curling of fingers represents the direction of magnetic field. Okay, so these curved fingers represents the direction of the magnetic field. So it is very clear that the magnetic field is in the form of concentric circles, and the curling is anti-clockwise. So we can say that when the current is flowing from down to up in a straight conductor, when we hold that conductor vertically, then its magnetic field will be in the anti-clockwise direction. Now in the whole unit, if I express MF, it means magnetic field. Okay, so but in the notes, if you will write the magnetic field, then you should not write MF. It is I am writing this to save the time. That's why I will use MF for magnetic field. So this is MF in anti-clockwise direction. Okay, and if the current in the same wire flows from up to down, then also according to the right hand thumb rule, the magnetic field will be in the form of concentric circles, but this time by using the same right hand thumb rule, the direction of the magnetic field will be clockwise. Okay, so in this case MF is clockwise. Okay, now write a short note regarding this rule, that if a conductor
carrying current is held in the right hand such that the thumb points the direction of current I, then the tips of curled fingers encircling the conductor will give direction of magnetic field. So this is the proper statement of the right hand thumb rule. Okay, now we will discuss about the most important law, that is Biot-Savart law. Biot-Savart was a scientist who gave this law, and according to this, he imagined a conductor wire in which the current is flowing. Suppose this is the current which is represented by capital I. It is flowing in this wire, and a small element of this wire, small element means I am talking about the small length, means this length, the wire in which the current is flowing, its length is more, and Biot-Savart imagined a small section of this wire, and the length of that section is represented by a small dl. This is dl. Okay, now this is represented in the form of vector, so vector dl, and if there is a point P where the magnetic field is required to be calculated, and if we imagine the magnetic field at this point P as dB, because we are taking this dB is the magnetic field due to this small element dl, मीन्स छोटा एलिमेंट जो dl है, लेंथ का छोटा एलिमेंट को dl माना गया है, और उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से इस वायर से थोड़ी दूर पर एक पॉइंट P है जहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल dB से. ओके, अब देखिए, अब इस dl के बिल्कुल मिड से अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, P को ज्वाइन करते हैं, तो ये लाइन आएगी, एंड इफ the position of this point P from the mid of the small element dl is represented by vector r. So this vector r represents the position of point P from the small element dl in which the current I is flowing. And suppose there is angle between this dl and this line which joins the mid of the dl and point P, and this angle is theta. Okay, then according to Biot-Savart, the small magnetic field which is developed will be directly proportional to the small element of length dl. So dB is directly proportional to dl. What does it mean? If we increase the length of the dl, then it is natural that the magnetic field at point P will also increase, because they are directly proportional. And also, if we increase the current, suppose in an experiment the 5 ampere current is flowing in this wire, the same other things should be kept same, means this vector r same, dl same, everything is same. And if we increase the current to 10 ampere, then also the magnetic field developed at point P will be directly proportional to the current. मीन्स जैसे जैसे करंट भी बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट डीएल, वो बढ़ेगा. ओके, इन द सेम वे द थर्ड थिंग विच ही स्टडीड, द मैग्नेटिक फील्ड विच इज डेवलप्ड एट पॉइंट पी will be directly proportional to the sine of angle theta, and you know that theta is the angle between vector dl and position vector r. Okay, so it gives the magnitude of
magnetic field developed. dB is the magnitude of magnetic field developed at a point due to element dl of current carrying conductor. ओके अब देखिए आपको फर्स्ट हो गया अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ. फर्स्ट इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द small length of the small means we can say that small element of the length. So this is dl is the small element of the length, so it is direct. dB is directly proportional to dl. dB is directly proportional to the current flowing in this wire, and the dB is directly proportional to the angle between this dl and the position vector, this line joining this center of the dl and point P. Okay, if we combine all these three, then what we'll get, dB is directly proportional to dl I sin theta. ये तीन चीज तो हो गई. अब क्योंकि पोजीशन वेक्टर भी अफेक्ट करता है इस पे मैग्नेटिक फील्ड पे. अब क्यों अफेक्ट करता है वो भी आपको बता दूं. अगर ये पॉइंट P थोड़ा सा और दूर ले लिया जाएगा तो जो dB है वो नेचुरल है कि वो कम हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है. तो अगर dB हम मान लीजिए ये पॉइंट P यहाँ ना होकर के अगर यहाँ पे होता तो ये नेचुरल है कि r जो वेक्टर r है पोजीशन वेक्टर, इसकी लेंथ बढ़ जाती. जब इसकी लेंथ बढ़ेगी, जब ये करंट कैरिंग वायर कंडक्टर से दूर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड एट पॉइंट P एट द न्यू पोजीशन ऑफ द पॉइंट P, तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी. जैसे जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी. तो ये भी बायोट-सेवर्ट ने स्टडी किया. तो इसके बेस पे फोर्थ जो उसने बताया, फोर्थ क्या है, dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ the position vector r, means the square of the distance between the dl and point P. Okay, so this will be fourth. अब अगर आप इन चारों को, ये तीन को कंबाइन करके, तो ये आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, लेकिन हम इसको r को इग्नोर नहीं कर सकते थे. तो इसलिए अब इन चारों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हम अलग स्केच पेन से लिख दे रहे हैं, रेड से लिख दे रहे हैं. फाइनली dB will be directly proportional to IDL sin theta upon r square. This is the conclusion given by Biot-Savart. Means that magnetic field will be directly proportional to the current flowing in the conductor. It is directly proportional to the length of the small element dl. It is directly proportional to the angle between the direction of current and या हम ये कह सकते हैं दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर dl एंड वेक्टर r. dl और r के बीच का ही ये एंगल है थीटा, और दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन dl एंड p. ओके, अब ये सबको कंबाइन करके 1 2 3 को यहाँ पे लिख सकते हैं. ऑन कंबाइनिंग 1 2 3 एंड 4, ये आपका आ गया. अब आप ये जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है. सो dB इक्वल टू, जब हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है. यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट स्मॉल k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. KIDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर आएगा. ठीक है, अब k क्या है, k एक्चुअली क्या है, k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. और म्यू नॉट क्या है, ये k की वैल्यू आपको याद रखनी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. तो अब इसके बेस पे हम ये क्या कह सकते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर. इसको याद रखिए आप लोग. दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर. And what is the unit of magnetic field? Unit of magnetic field SI unit is Newton per ampere meter. ये कैसे होती है अभी आगे डिस्कस करेंगे. ओके, आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी बायोट-सेवर्ट लॉ. अब हम डिस्कस करते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. व्हाट इज म्यू नॉट? K इज इक्वल टू, क्या आया, K इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट
परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की एक क्वालिटी होती है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की एक क्वालिटी या प्रॉपर्टी कह सकते हैं। एंड व्हाट इज फ्री स्पेस? फ्री स्पेस इज वैक्यूम। ओके, आप देखिए k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 की एक वैल्यू दी है। वैल्यू क्या दी है? म्यू नॉट अपॉन 4 की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यू शुड रिमेंबर दिस। उसके बाद म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो गई? 4 इंटू 10⁻⁷। ओके, अब एसआई यूनिट ऑफ म्यू नॉट उस पर डिस्कस कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी दैट इज म्यू नॉट। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला भी एक साइंटिस्ट थे। देखो, मैग्नेटिज्म में हमारे 3 साइंटिस्ट ने वर्क किया और उनके नाम से ही इसमें यूनिट इसकी रखी गई। पहला साइंटिस्ट थे टेस्ला, दूसरे साइंटिस्ट थे वेबर, तीसरे साइंटिस्ट थे गॉस। ठीक है, टेस्ला, वेबर, गॉस, और इन तीनों साइंटिस्ट ने करंट का यूज किया, तो इसलिए एम्पियर का भी अपना कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में जो वर्क हुआ वो 4 साइंटिस्ट। एम्पियर का बहुत कम कंट्रीब्यूशन है क्योंकि सिर्फ उसने एम्पियर ने करंट को इन्वेंट किया था। लेकिन अब सोचिए कि करंट अगर इन्वेंट ना होती तो मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वेंट नहीं होती। इसलिए हम चारों का नाम ले रहे हैं। पहला है टेस्ला, दूसरा साइंटिस्ट है वेबर, तीसरा है गॉस। ये 3 ने तो मैग्नेटिज्म पे वर्क किया, और इन तीनों से पहले जो साइंटिस्ट था एम्पियर, जिसने करंट को इन्वेंट किया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो था इनिशियली वो एम्पियर ही था, लेकिन एम्पियर ने मैग्नेटिक फील्ड के लिए कुछ नहीं किया। मैग्नेटिक फील्ड के लिए यही 3 साइंटिस्ट ने किया। आप देखिए टेस्ला, इसकी म्यू नॉट की क्या हो गया? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, या हम इसको कह सकते हैं वेबर के टर्म में, वेबर पर मीटर एम्पियर। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? इसका आपको एक रिलेशन टेस्ला और वेबर के बीच रिलेशन याद रखना चाहिए। टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला इज इक्वल टू, यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर, जैसे ही टेस्ला की जगह हम वेबर पर मीटर स्क्वायर पुट करेंगे तो ये टेस्ला वाली यूनिट वेबर में चेंज हो जाएगी। इट विल बी वेबर पर मीटर एम्पियर। ओके, अब हम सीजीएस यूनिट की बात करें। सीजीएस यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी म्यू नॉट। सीजीएस यूनिट, क्योंकि गॉस ने भी वर्क किया तो इसलिए गॉस को भी इंपॉर्टेंस दी गई। गॉस को भी मतलब यूनिट नेम गॉस दे दिया टू give importance to that scientist so that the persons can remember this. So Gauss meter per ampere into 10⁻⁻⁴, ये आपका सीजीएस यूनिट ऑफ म्यू नॉट हो गया, या एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बोलते हैं। ये क्यों हुआ? ये इस रिलेशन की वजह से हुआ। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, तो इसके बेस पे आपका गॉस मीटर पर एम्पियर इंटू 10⁻⁻⁴, ये आपका सीजीएस यूनिट ऑफ म्यू नॉट हो गया। ओके, अब आगे बढ़ें। अब देखिए आपका जो डीबी आया था एट पॉइंट पी, म्यू नॉट अपॉन 4 आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये एसआई यूनिट होती है। अब सवाल उठता है कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर कहां से आए, ये कहां से आई है? आगे चल के आप लोग एक रिलेशन पढ़ेंगे, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। ये आगे चल के हम ये पढ़ाएंगे। इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट डिराइव की गई। F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब इसमें B आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम इसको रिलेशन को ऐसे करें कि QV और साइन थीटा को हम डिनोमिनेटर में ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो F अपॉन QV साइन थीटा ये हो जाएगा, QV साइन थीटा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? हम जानते हैं न्यूटन। QV साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं ली जाती। QV, Q क्या है? Q इज द चार्ज। चार्ज को हम जानते हैं, यहां पे आप इसको ऐसे देख लीजिए तब वरना कंफ्यूज हो जाओगे। Q इज इक्वल टू IT होता है, तो ये ITV हो गया। साइन थीटा को हम इग्नोर कर रहे हैं, इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं लेंगे। F अपॉन ITV। अब I का क्या हो गया? एम्पियर। T का क्या हो गया? सेकेंड।
और v इज द वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल हो गया। ये जो पूरा मैं ब्रैकेट में लिखा हूं, ये न्यूटन के बाद न्यूटन न्यूमरेटर है, तो ये पूरा ब्रैकेट डिनोमिनेटर है। ये न्यूमरेटर है, एफ न्यूमरेटर है, उसकी यूनिट हो गई न्यूटन एसआई यूनिट। उसके बाद डिनोमिनेटर में आई टी वी बचा, बिकॉज क्यू इज इक्वल टू आई टी। क्यू की जगह आई टी हमने पुट किया, बिकॉज वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू आई टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी को बेस लेकर के हमने यहाँ पे आई टी लिखा। आई की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, टी की यूनिट होती है सेकेंड, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे डिनोमिनेटर में ही सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका यूनिट क्या आ गया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और हम इसी फॉर्मूले का यूज करके न्यूटन पर एम्पियर मीटर हम लाए हैं। ठीक है, आप देखिए, अगर आपसे कोई पूछे राइट डाउन द वेक्टर फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सो वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, सारे कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे। उसके बाद वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। देखिए मेन फॉर्मूले में यहाँ पे आर स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे आर क्यूब लिया गया। क्यों लिया गया, क्योंकि न्यूमरेटर में हमको क्रॉस में आर वेक्टर आर को शो करना था। ठीक है, अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो जब वेक्टर हटा दें, केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा, ये एक आर से यहाँ का आर कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर ही बचेगा। तो आपका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला वही आ जाएगा जो बायोट-सेवर्ट ने दिया था। ओके, एंड व्हाट इज द यूनिट, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड विच वॉज इन्वेंटेड by that scientist named Biot-Savart. Okay, thank you very much for watching this video.